वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका केमिस्ट्री बाय डीटी सर चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 11th का थर्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं। अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जाएं और हिस्टोरिकल फैक्ट की बात ना हो तो थोड़ा सा, आज आप पूरा एक सीरीज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो आज का हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहली बात हमको जो जाननी है, द फर्स्ट ऑफ थिंग, दैट व्हाट इज एलिमेंट। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। प्योरेस्ट, if anything is made up of only one kind of atoms, then it is called element. For example, if there is a copper wire and this copper wire is made up of only copper atom, right? Only copper atom, then it is called what? Element. ठीक, क्लियर हो गया? Element. The purest form of any substance is called element. Purest form of any substance called what? Element. मैंने क्या बताया? अगर किसी एलिमेंट में if any element is made up of only one kind of atom, then it is called element. If the substance is made up of only one kind of substance. Okay. Initially, there are 63 elements are known. अगर हम बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करें तो that time only 63 elements known, right? Thereafter this become 114 elements. Nowadays we know about 114 elements. ठीक, तो initially there are only 63 elements known, but nowadays there are 114 elements are known. Thing is that whenever there are, since the number of elements get increases, therefore it become difficult to learn all the physical and chemical properties of element. जैसे कि शुरुआत से शुरू हुई बातें, शुरुआत में इनिशियली 63 elements are known, nowadays 114 elements are known. तो प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई 63 एलिमेंट्स है या 114 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आखिर में कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, राइट? तो for the systematic and organized study of element, for the systematic organized study of element, the scientists feel there is a need for classification of element, right? Therefore number of scientists collected and they are start trying to grouping the elements together, or
they start trying to find out what is the basis by which we can group the element into one part or a systematic way. The first attempt, अभी तो बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय लैवोजियर, फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो हम क्या कह रहे थे, 63 एलिमेंट्स आर नोन फॉर द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट, साइंटिस्ट हैव a need for classification of element. Then scientists trying to grouping the element, trying to grouping the element, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने गए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय लैवोजियर, लेवोइजर, राइट, सभी ने जानते हैं। लैवोजियर ने फर्स्ट ऑफ ऑल he grouped the elements into two forms. Group the element into what? Metal and non-metal. फर्स्ट आपकी ग्रुपिंग हुई कि इसने क्या करा कि 63 एलिमेंट्स को सबसे पहले लैवोजियर ने डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट अटेम्प्ट मेड, राइट, स्टार्टिंग। बट कंसोलिडेटेड स्टार्ट about the grouping of element, classification of element started by Dobereiner. तो डॉबरीनर की बात करते हैं तो डॉबरीनर के बोर्ड को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट लैवोजियर ने किया, he divided the elements into या grouped the elements into two groups, metal and non-metal. Then second attempt or prescribed first attempt made by Dobereiner. Right? So Dobereiner, first of all, he gave a name, triads. What is triads? Triads is the group of three elements. Triads क्या था? Group of three elements. और उसने किया क्या? He arranged the element in increasing order of atomic masses in this way. In this way, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and then fluorine. Further on, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Thereafter, potassium, calcium, galenium, ये अभी हमने लिखा लेकिन उस टाइम पे ये डिस्कवर्ड नहीं था। जर्मेनियम, ये भी डिस्कवर्ड नहीं था, चाहे तो नहीं लिखें, चलो नहीं लिखते हैं, अब लिख दिया है यार, छोड़ो। गैलेनियम, आर्सेनिक, सिल्यूरियम एंड देन ब्रोमीन। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस की बात कर दें तो एक डिफरेंट वे की बात हो रही है। जैसे एटॉमिक मासेस आपके पास है, लिथियम
7, 9.4, 11, 12, 14, 16, 18। यहां पे बात करें 23, 24, 27, 28, 31, 32 and 35.5। कैल्शियम पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ब्रोमीन 80। राइट। डॉबरेनियर ने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड द ग्रुप द elements into three elements, horizontally as well as vertically। तो अगर हम वर्टिकल कॉलम की बात करें ट्राइड्स, तो देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इधर से कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। यहां पे वर्टिकल आ गए, ये लीजिए ये वर्टिकल, ठीक है। सो द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज नोन एज ट्राइड्स। अकॉर्डिंग टू डॉबरिनर, if we arrange the element in the atomic mass increasing order of atomic masses, then middle element has atomic mass equal to the average of other 2 elements या arithmetic mean of other 2 elements। For example, in case of sodium, atomic mass of sodium, then it become atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium divided by 2, right? So what is the atomic mass of lithium? 7. Atomic mass of potassium 39 divided by 2, then it become 46 divided by 2. It means what? Atomic mass of sodium become 23। that is true। बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल भी चल सकते हैं, वर्टिकल भी चल सकते हैं। जरा यहां पे देखते हैं, इन केस ऑफ FCl एंड Br, तो अगर हमको Cl का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू डॉबरेनियर ट्राइड्स लॉ, if we arrange the element in increasing order of atomic masses, then in the group of 3 elements, that is called triads, the middle element has atomic mass equal to arithmetic mean of other 2 या एवरेज ऑफ अदर 2। तो यहां पे आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ फ्लोराइड प्लस एटॉमिक मास ऑफ Br डिवाइडेड बाय 2। तो देखो भाई, एटॉमिक मास 18 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है बेटा? 98 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया बेटा? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो यहां तो क्लोरीन का एटॉमिक मास तो 49 होना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब ये जो डॉबरेनियर ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, अरेंज किया कुछ एलिमेंट पे, ये तो प्रैक्टिकली हुआ भी। जैसे आप देखो यहां पे हो रहा है, और भी है आपके पास, बीच में कर ढूंढेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे। केमिस्ट्री है, सिर्फ करने से थोड़ा सा आपको भी सर्च करना पड़े, जो बताया उसको ट्राई कीजिए, ढूंढिए कहां है। लेकिन
नो, इसमें हैलोजन के केसेस में यहां पे ये फेल हो गया, इसका एटॉमिक मास उन्होंने 35.5 रखा, लेकिन जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास तो 49 आ रहा है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक तो नहीं बोलेंगे, डिमेरिट्स रहे, ठीक है ना, कि ये हैवियर एलिमेंट्स में अप्लाई नहीं हो पाया और ये क्या हो गए, इनको नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया आगे के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये फर्स्ट डॉबरेनियर ट्रेड्स था। अगर इसको पूरी बात में कंप्लीट कह दूं तो डॉबरेनियर gives Tribe's law. According to Tribe's law, if we arrange the element according to Dobrenier Tribe's law, if we arrange the element in increasing order of atomic masses, then in the group of 3 elements, that is called tribes, vertical as well as horizontal, the middle element has atomic mass equal to the average of other 2 elements or arithmetic mean of other 2 elements. लेकिन ये जो लॉ था दैट इज एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम 40, ये कि डेमेरिट्स थी, और ये लॉस बेसिकली फेल हो गया कहां पे, इस जगह पे फ्लोरीन। यहां पे हमने अगर एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका 49 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, 35.5। तो ये तो डिमेरिट्स हो गए। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना लॉ दिया, जरा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अटेम्प्ट, third attempt made by De Curtius classification. De Curtius, Curtius classification. दी कॉन्कॉर्सियट जो थे, इन्होंने एक किया, इन्होंने भी अरेंज किया, अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। और इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद सिलिंड्रिकल टेबल बनाया, राइट। सिलिंड्रिकल टेबल कैसे, इस तरीके से सिलिंड्रिकल टेबल, ऐसे, इस तरह सिलिंड्रिकल टेबल, ऐसे टेबल बना। तो इन्होंने फाइंड आउट क्या कर लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने फाइंड आउट किया, जिसके लिए इनको जाना था, लेकिन बाद में इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिली। लेकिन बेसिक चीज आप अभी देखिएगा, बताता हूं कि अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन द सिलिंड्रिकल फॉर्म। सो ही फाइंड दैट आफ्टर रेगुलर इंटरवल सेम प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स lies similar position या occupies the similar position। जब इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, then he concluded that the similar property having element occupy the similar position, then he indicate that there is reoccurrence of similar property having elements
appear. राइट? क्या बता दिया कि भाई एक रेगुलर इंटरवल के बाद यहां पे रीअकरेंस हो रहे सिमिलर प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स की, यानी वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से यही तो कॉजेज है आपकी पीरियोडिसिटी, जो अब हम लोग इसके बाद बात आई है पीरियोडिसिटी टर्म्स आया कहां से, हम लोग बार बार पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी, आप नेट की आईआईटी की सबकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सारी बातें अगर आपसे कभी पूछ दें कि किसने दिया था ये पीरियोडिसिटी टर्म, तो डी कॉनकॉर्टॉइस ने दिया था, लेकिन इनको इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल पाया तो ये भी संसार में गुम हो गए। साइंस है, ठीक है? तो आप इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, हमारे पास एक और साइंटिस्ट फिर अपीयर हुए, उन्होंने भी हर एक स्टेप पे आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स को ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने के बाद अपना एक नया रूल दे रहे। नेक्स्ट हमारे पास चले आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स गेव ऑक्टेव लॉ। विच लॉ? ऑक्टेव लॉ। बेसिकली न्यूलैंड्स क्या थे? एक म्यूजिशियन, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा जैसे म्यूजिक में हम लोग करते हैं सा रे गा मा पा धा नी, है ना? द सेम एलिमेंट, सेम सरगम रिपीटेड, सा, ठीक। फर्स्ट कौन सा था? सा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ द सेम साउंड अपीयर। म्यूजिशियन थे, तो उन्होंने कहा कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो भाई देखो फिर से अरेंज कर देते हैं। ये लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी मैंने एक छोड़ा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। नेक्स्ट, पोटेशियम, कैल्शियम। If we arrange the element in increasing order of atomic masses according to Newland's law, octave law, Newland's octave law, क्या बताया कि if we arrange the element in increasing order of atomic masses, then first and eighth element shows similar property. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, then eighth element show similar property. जो डी कॉनकॉर्ट ने बताया था रीअकरेंस ऑफ सिमिलर, यानी रेगुलर इंटरवल के बाद एक सिमिलर प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो, राइट? तो ये चीज यहां पे आ गई न्यूलैंड्स ऑक्टेव। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि अभी तक तो नोबल गैसेज डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन जैसे ही नोबल गैसेज यहां पे डिस्कवर्ड हो गए, तो ये जो रिलेशन था अब 1 to 8 के बजाय अब कितना हो गया? यहां पे 8 एंड देन इट बिकम व्हाट?
9, right? यानी after the discovery of noble gases, the relation become first and 9, not the first and 8. So this is the major drawback या कह लीजिए आप demerits of octave law. But he laid the foundation, strong foundation in the grouping of element, so that the new building is created on the basis of this Newland's octave law, de Courcius, Lavoisier, as well as what Dobriner. One by one, step by step, the grouping of elements is organizing, increasing, prepared, modified. ये सारी चीजें लोग साइंस में यूज करें. Next, the most important effort made by Lothar Meyer. लॉथर मेयर एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है भाई. मैं इनका पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी थी. अब मैं आपको भी देखिए, आप खुद सामने प्रिडिक्ट कर लेंगे. लॉथर मेयर, लॉथर मेयर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने ग्राफ प्रिपेयर कर. ग्राफ कैसे? एटॉमिक मास वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी and so on, some other property. Lothar Meyer prepare graph in between atomic masses and melting point, boiling point, volume and density of atom. दो चीजों में ग्राफ प्रिपेयर कर दिया. और जब ग्राफ प्रिपेयर किया तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया. जैसे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं और मैं ग्राफ प्रिपेयर कर दूं, ये लीजिए, यहां पे हमने लिया वॉल्यूम, यहां हमारे पास हो गया एटॉमिक मास. तो इस तरह से ग्राफ है. ऐसे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा. इससे बड़े साइंटिस्ट की सेम टू सेम बात को रिपीट करना भी बड़ा मुश्किल काम, ठीक है ना. तो whenever he plot the graph, then he observed that a similar property having elements occupy the similar position. Similar, जैसे टॉप पोजीशन, ये देखिए थोड़ा और बढ़ सकता था, राइट. तो ये टॉप पोजीशन है. तो सिमिलर एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन. जैसे यहां पे क्या हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. देखिए सबके सिमिलर प्रॉपर्टी है, सभी टॉप पे. यानी इसने बिल्कुल भी, जो लॉथर मेयर थे उन्होंने वही सारी बातें बोली जो मेंडलीफ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात है या पीरियोडिक टेबल में जो पता है. लॉथर में फर्क ये था कि इन्होंने क्या किया? ग्राफ के फॉर्म में दिया है. तो इस ग्राफ को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना. इन्होंने क्या बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन. सेम वे सेकंड ग्रुप एलिमेंट प्रेजेंट ओवर हियर सेम पोजीशन, यानी सेम प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन, and stated that after a regular interval
if we arrange the element in increasing order of, yani if we plot the graph of volume, density, boiling point, melting point with versus atomic masses, then we find a graph in which similar property having elements occupy the similar position. लॉथर मेयर, मैं पर्सनली बताऊं तो लॉथर मेयर ने जितनी भी बातें बताई थी वो सारी की सारी बातें मेंडलीफ ने भी बताई, कोई नई चीज नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क रहा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन। तो असेंडिंग में ये देखिए यहां पे आपके पास आपके पास क्या बोलते हैं उसको, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हैलोजेंस, हैलोजेंस आपको मिल रहे, ठीक है। तो ये क्या था, लॉथर मेयर, लॉथर मेयर, राइट। एंड ही स्टेटेड दैट if we arrange the element on the basis of all these calculation, he stated that if we arrange the element in the increasing order of atomic masses, increasing order of atomic masses, then similar properties having element reappears, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी हैविंग एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, फिर से रीअपियरेंस हो रहा है, रीअकरेंस हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग, repetition of similar property having element after regular interval is called periodicity, reoccurrence, right। ये लॉथर में। देयर आफ्टर मेंडलीफ की बारी आ गई, इसके बाद मेंडलीफ ने अपना लॉ दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेंडलीफ लॉ।